India's got hurt because India's got latent, अब latent रहा नहीं, वो manifest हुआ The power of manifestation. और फिर डेड। क्या आपने कभी आपके मौत के बारे में सोचा है? वो करियर की मौत की बात कर रहा था। A show that was not made for mainstream audience but somehow got into the mainstream. If you don't know about this controversy, तो तुमसे बड़ा latent कोई नहीं है, because अब अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो I don't know bro. Either you're not watching news, you're not watching YouTube, you're not on the internet. Congratulations, you have a life. But chalo, for the video, let me fill you in. Not like that. It all started when Ranbir Alavadia went to India's Got Latent and said this. I have another question. Yes. आप जू में जा रहे हो, आप बंदर को देख रहे हो, आपको लगा कि अगर इसको करूं तो बच्चा कैसा निकलेगा? Dhana. Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? वैसे जो भी शो में गया वो यही सोच रहा है। Before we get into the video, I'd like to clear some things. जो भी रणवीर ने उस शो में कहा, it was not a good joke. Because it was not a joke. वो एक सवाल था, वो एक would you rather question था। Would you rather questions वो questions होते हैं जिसमें दो worst situations में से आपको एक less worst situation चुननी होती है, just like our elections. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जोक और क्वेश्चन में फर्क होता है, बट आई गेस वो हमारी इंडियन मीडिया को कैसे पता होगा, उन्होंने हमेशा सवाल के नाम पे जोक ही तो मारे हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। But to be honest, Ranveer should not have asked that question. In India, us Indians are not ready to hear such obscene remarks from young individuals like Ranveer. उसके लिए we have politicians. पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। Congress MLA Ramesh Kumar passed a sexist comment saying that when rape is inevitable, lie down and enjoy it. But what's even more appalling is that instead of opposing the offensive remark, the Karnataka Assembly Speaker and members of the Legislative Assembly were heard breaking into laughter. This BJP MP Ramesh Biduri called BSP MP Kunwar Danish Ali a terrorist in the Lok Sabha. He lost his cool during his speech and raised communal slurs against Ali. मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बढ़वे, ओए उग्रवादी। While Biduri made this remark, his party colleague and former Union Minister Harsh Vardhan was seen laughing. थोड़ी मर्यादा रखिए। लगता है अगली hearing मेरी होगी सुप्रीम कोर्ट में। See, the question he asked on the show was not original. Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? As expected, ठीक है, हमारे इंडिया में आदत है वेस्ट की कॉपी करना, तो रणवीर बस उस प्रथा को आगे बढ़ा रहा था। We believe nothing should be done for the first time. Second time is okay, but not the first time. Don't do anything for the first time. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or join in once to stop it? I guess कुछ चीजें second time भी नहीं कर सकते। After what Ranveer said, there has been an investigation going on. Yeah, इसके लिए भी एक investigation हो रही है। I don't know, ये ढूंढ रहे हैं कि जोक कैसे पता चला रणवीर को। इन सब पर अब FIR फाइल की गई है, which makes sense obviously. Legal route follow कर रहे हैं लोग। I guess लोगों को option अच्छे नहीं लगे। Sorry. Everyone who's been on the show or worked on the show, सबको पुलिस समन कर रही है। उससे पहले मीडिया समन कर रही है। अपूर्वा। More like smack कर रही है। थोड़ी मर्यादा रखिए। This case is now in Supreme Court. इसकी एक hearing भी हो चुकी है, because it's a very important case. Supreme Court currently has 80,000 pending cases before it.
as per the National Judicial Data Grid. So the roster moved fairly quickly to list this case. But see, this case is very important. That's why उनकी hearing बहुत जल्दी हो गई. शायद बाकी cases को इतनी importance की जरूरत नहीं होगी. They know better obviously. But जैसे ही इन सब लोगों को सजा मिल जाएगी, next day से हम first world country, which got offended by a show on the internet. Supreme Court was very angry at Ranveer. I guess Ranveer wasn't smiling enough. Supreme Court ने कहा है रणवीर को that he cannot upload any content on the internet, which is nice. I agree. मुझे उंगली डालना बहुत अच्छा लगता है. हाँ बेटे सही जगह पे डाला कर लेके. I thought जो रणवीर ने कहा वो joke नहीं था, but I guess I was wrong. It was a beginning of a very bad joke. पूरे इंडिया में रणबीर इलाहाबादी की जबान काट के जो भी मेरे पास लाएगा उसे 5 लाख रुपए का कैश अमाउंट गाइस दूंगा मैं. कल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे. कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत. लाइन कैसे तय होगी? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए. मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए. वैसे ये बैनर और पुतले बनाने में खर्चा तो काफी होता है. I guess समय wasn't the only one जिसने इतना खर्चा किया just for it to burn to ashes. समय सबकी लेता है. कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है, जिंदा अश्लीलता. बिल्कुल सही है. और अगर मरा हुआ जमीन देखना है तो न्यूज चैनल देख लो. ऐसे जलील लोगों को सरकार सम्मानित कर रही है, अवार्ड दे रही है, जो बिल्कुल भी जनहित में उचित नहीं है. इनका अवार्ड वापस लेना चाहिए. बिल्कुल सही है. रणवीर का अवार्ड वापस ले लेना चाहिए. He doesn't deserve the India's Best Creator Award. वो अवार्ड न्यूज चैनल्स को देना चाहिए. वो लिटरली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आउट ऑफ नथिंग. रणवीर के स्टूपिड क्वेश्चन के बाद आई थिंक सबने इंटरनली एक कंपटीशन स्टार्ट कर दिया है कि कौन सबसे स्टूपिड चीज कह सकता है. कोई किम जोंग को कोट कर रहा है. उनको कई बार ना कोरोना समय पे किंग जॉन बहुत अच्छा लगा. नॉर्थ कोरिया वाला. हाँ वो आदमी बहुत ऊंचा था. वो कह रहा है जितने को कोरोना है उनको सीताराम, बस हो गया, बढ़ेगा ही नहीं आगे. कोई कह रहा है कि भाई हमें चाइना की तरह यूट्यूब और गूगल को बैन कर देना चाहिए. चाइना ने बंद कर दिया, मैंने सुना. चाइना ने अपना गूगल शुरू किया है वहां पर. चाइना कर सकता है, हम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हम? वैसे बिल्कुल सही है. यूट्यूब बैन कर देना चाहिए. कम से कम इसी बहाने इनको तो नहीं सुनना पड़ेगा. और हमारे सुनील सर ने तो सीधा आतंकवादी ही कह दिया. नहीं, ये वाला सुनील नहीं, वो क्लीन करने वाला. कॉमेडी. वो ऐसा गवर्नमेंट है कि आप उसको रिपीट भी नहीं कर सकते. ये लोग इंसान की नहीं शैतानों की औलादे हैं. ये एज गुड एज आतंकवादी है. सुनील पाल, जिनको अटेंशन तभी मिलती है जब दूसरे कॉमेडियंस जोक मारते हैं. सर 20 साल से कॉमेडी कर रहे हैं. ओ सॉरी सर, 20 साल पुरानी कॉमेडी कर रहे हैं. सल्लू भाई को मैंने दीपावली की शुभकामना के लिए फोन किया. मैंने कहा सल्लू भाई आपको विश, नेटवर्क कम था तो बोले नहीं 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 नहीं. उनको लगा मैं कहना चाहता हूं कि सल्लू भाई आपको विश नोई का फोन है. तो अभी तो भैया मैं किसी को विश नोई करेगा, आपन किसी को विश नोई करेगा. सर 2005 में लाफ्टर चैलेंज जीते थे. उसके बाद से लाफ्टर लाना एक चैलेंज ही हो गया. साहब बोल रहा, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, आपको इज्जत दे रहा हूँ. आप इज्जत के लायक है नहीं. वैसे सुनील पाल जो अपने जोक्स और रील्स दोनों रिपीट करते हैं ताकि समाज और समझ दोनों में आ सके. ऐसे लोग जो समाज में भी नहीं आते और समझ में भी नहीं आते. सर का एक फेमस शराबी कैरेक्टर था रतन नूरा. लगता है सर आज भी कैरेक्टर में ही है. इन लोगों को पकड़ के मारना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की. लड़कियों को भी औरतों को पकड़ के मारना चाहिए. इन लोगों को, औरतों का नाम बदनाम कर रही है लड़कियां. सॉफ्ट कोटा खोल के बैठ जाओ ना तुम लोग, जब तुमको पैसा ही कमाना है इस तरह से हिजड़ेगिरी करके. तो सर थोड़ा शब्दों का मर्यादा. ये एज गुड एज आतंकवादी है. सर के अकॉर्डिंग समय रैना जैसे कॉमेडियंस की वजह से हमारी जनरेशन खराब हो रही है. हाँ, और रतन नूरा जैसे कैरेक्टर्स की वजह से तो रतन टाटा बन रहे थे ना लोग. ऐसा सिस्टम बना के रखते कि ब्लॉक भी नहीं कर सकते आप. कुछ ऐसा बना के रखते कि मैं कई बार गालियों वाला आता तो मैं ब्लॉक करना चाहता तो हो ही नहीं, होता ही नहीं, ब्लॉक नहीं होता.
बट चलो सुनील पाल इज कंसिस्टेंट विद हिज इलॉजिकल हेट, बट ये बंदा, ये तो पॉलिटिशियन से भी जल्दी पार्टी बदलता है। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। पर हाँ मैं देखता हूँ। और वो महीप सर है। अरे सर मम्मी कैसी है? और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब कुछ। मम्मी कैसी है? मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का। शट अप। बट टू बी ऑनेस्ट सर को पसंद तो था समय रहना, जब सबको पसंद था। अब सबको पसंद नहीं है तो सर को पसंद नहीं है, क्योंकि सर एक जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट का अपना ओपिनियन नहीं होता। सर पब्लिक के लिए काम करते हैं और सर पब्लिक ओपिनियन को ही फॉलो करते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। मम्मी कैसी है? माफ कीजिएगा आंटी जी, आज एक माता के तौर पर आपके लिए दुख है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू फेल्ड एज अ पेरेंट। मम्मी कैसी है? आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए। हाँ जी लिया था मैंने। छी छी शेम। बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। इवन बी प्राग ने भी इस पे अपना ओपिनियन दिया है। I don't know why. मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा इंडियन कल्चर है ही नहीं। रणवीर को पता ही नहीं हमारा इंडियन कल्चर क्या है। आप जरा बताओ यार, ये क्या है, अपना इंडियन कल्चर क्या है, बताओ। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। अच्छा कंटेंट दिखाना बड़ा ज़रूरी है, और अच्छा कंटेंट हम बनाएंगे, दिखाएंगे, आपके बच्चे उससे सीखेंगे। आप बच्चों के सामने ऐसी बातें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, कोई भी बात हो, वो चाहे इनकी बात नहीं हो, कोई भी बात हो। अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? अरे सर वो स्टोरी नहीं बता रहे हैं, वो एक वुड यू रादर का क्वेश्चन। छोड़ो, आप गाना ही गाओ। कि किसी की फैमिली को कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। ये चीजें मत करिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी, बट आई थिंक हमारा शायद फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज हम इन बड़े मुद्दों पे फंसे हुए हैं। हम छोटे मुद्दों पे फोकस ही नहीं कर रहे, जैसे कि हाई EQI, करप्शन, डॉलर का रेट, पेट्रोल का रेट, क्लाइमेट चेंज, वुमेन सेफ्टी, ये छोटे मुद्दों पे हम फोकस ही नहीं कर रहे। पर नहीं, हमें ये बताना है कि कौन क्या बोल सकता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट ऑल इन ऑल, आफ्टर ऑल दिस, सवाल तो बनता है, नहीं वो वुड यू रादर वाला नहीं, कि इस सवाल पर इतना बवाल क्यों। अब कोई लोग कह रहे हैं क्योंकि रणवीर काफी मेन स्ट्रीम कैरेक्टर है और उसकी इमेज काफी डिफरेंट थी जिस तरह वो पोर्ट्रे कर रहा था, और वो वैसा निकला नहीं, वो स्पिरिचुअल बातें करता है और फिर उसके बाद इतनी ऑब्सीन बातें कर रहा है, विच इज फाइन। बट आई थिंक इंडिया में ये पहली बार नहीं हुआ है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोग ऑब्सीन हरकतें कर रहे हैं। जस्ट सेइंग, डोंट शूट द मैसेंजर प्लीज, डोंट। सॉरी I'm sorry मैंने इन लोगों को रणवीर से कंपेयर किया, ये डिजर्व नहीं करता रणवीर। कुछ लोग तो ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रख रहे हैं कि ये OTT माफिया की वजह से ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी है, बिकॉज दे वांट समय टू सेल हिज IP टू देम, व्हिच आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट। बट अगर समय अपना इंडियाज गॉट लेटेंट सेल करता है तो आई थिंक उसको ऑल्ट बालाजी को सेल करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मनी, कंसिडरिंग वहां पे कुछ भी अपलोड करो तो पर केस भी नहीं होगा, कुछ डिलीट भी नहीं होगा, अवार्ड मिलेगा वो अलग। और आप इस देश में नग्नता फैलाना चाहते हैं, आप इस देश में पोर्न वेबसाइट का प्रचार कर रहे हैं। And some other people are saying that this is being done by government because they want to pass the broadcasting bill, which makes sense. ऐसे ही हम चाइना को बीट करेंगे।
पॉपुलेशन में कर दिया, अब डिक्टेटरशिप में भी कर देंगे। डेवलपमेंट वो तभी होगी ना जब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी कि हम क्या देख सकते हैं और क्या नहीं देख सकते हैं। अब गवर्नमेंट तो हमारा अच्छा ही चाहेगी ना, वो हमें अच्छा ही दिखाएगी। गांधी जी के 3 बंदर याद है ना, बस वही बनना है। चलो कम से कम इस शो के बंद होने से इंडिया में क्राइम तो खत्म हो गया, हो जाएगा धीरे धीरे न्यूज में आना बंद।